हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 10 कंप्यूटर चैप्टर 1 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ। हम लोग का चैप्टर 1 है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये है हम लोग का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज। अब पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा, इन visual communication, a message is conveyed in imaginary form. Second, the message is encoded in the form of numbers and special characters. Next, verbal communication is one of the usual way of communication that involves direct and instant response. Next, filtering is the undeniable input due to which some barriers arise in the communication process and cause distortion of the message. Barriers मतलब रुकावट। अब सेकंड क्वेश्चन है, select the most suitable alternative which is not an element of communication process cycle. Time, which will be appropriate to apply your long leave at school email. हम लोग का सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया और पहला का आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव मोड ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। तो इसमें होगा ऑल ऑफ दिस। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। पहला है कम्युनिकेशन। द प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग, नॉलेज। द वर्ड कम्युनिकेशन comes from a Latin word communicare meaning to share. Second है decoding message. This is a process of deriving and understanding the idea being communicated in a message by the receiver. Next है feedback. The response of the receiver after receiving the message. It enables the sender to evaluate the effectiveness of the message. Next है organization barriers. Rules and regulations of certain organization may prohibit the free flow of communication. Next है noun. The name of a person, place, thing or idea. Noun can function in different rules within a sentence. Okay. Next है verb phrase. The predicate of a sentence or a clause. Example, the boy is writing a book. इज राइटिंग यहाँ पे वर्ब फ्रेज है। ओके, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's मतलब 7 रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला है कंसाइज, कीप एनी मैसेज इन शॉर्ट। सेकेंड है कॉन्क्रीट, मीनिंग ऑफ मैसेज शुड बी clear to understand easily for audience. Third है correct, the communication should be error free. Fourth है clarity, a clear idea about the purpose of communication with the audience should be ensured. फिर है coherent, all points of the message should connect to each other and to the main topics. फिर है complete, a message should be complete with all information. फिर है courteous, the communication should be respect and friendly. अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। ये आपका पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है, इट शोज द रिसीवर इन attentive, it sustains the communication process, it is the basis of meaning of effectiveness of communication. Positive feedback motivates an individual to do the task even better. अब हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन, फिजिकल, साइकोलॉजी, कल्चरल, मैकेनिकल। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का 2 पार्ट्स है, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। फिर सेकेंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और फिर है विजुअल कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप सबको मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पूरा मिल जाएगा। वर्बल के बारे में, द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स लैंग्वेज बेस्ड इंटरेक्शन।
non-verbal communication, the transmission of information without uses of word by uses of symbol, eye contact, facial expression, body posture, etc. Third है visual communication. This involves the use of images of communicate any information or idea. It is an effective way of passing any information as the human mind or is capable to understand the images quickly. फिर है oral communication, the communication that involves communication through face to face talks, telephonic conversation, etc. और एक है written communication, the communication in which the information is expressed or praised to the recipient in the written form. So हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है, list the measures to overcome barrier in communication. ये सब इसका पॉइंट्स है, eliminating difference in perception, use of simple language, reduction and elimination of noise level, active listening, proper media selection. ओके, सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया. अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. गेस द काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पहला क्वेश्चन है आई लाइक कॉफ़ी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. आप इसको असर्टिव भी बोल सकते हैं. सेकेंड है डू यू वांट सम टी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. थर्ड है हाउ एक्साइटिंग द मूवी वाज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. वी डिडंट वॉच टीवी लास्ट नाइट, नेगेटिव सेंटेंस. ओके, सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया. अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. आइडेंटिफाई द फ्रेज. पहला क्वेश्चन है आई रन एज फास्ट एज पॉसिबल. यहाँ पे एज फास्ट एज एक फ्रेज है जो कि प्रीपोजिशन फ्रेज है. ओके, सेकंड है सी लीड्स ए वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ. इसमें वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज है जो कि एडवर्ब फ्रेज है. ओके, थर्ड है एज सून एज यू गॉट इन ही वेंट आउट. यहाँ पे एज सून एज है और ये प्रीपोजिशन फ्रेज है. ओके, फिर है जूली इज़ ए वुमेन ऑफ गॉर्जियस स्टाइल. यहाँ पे गॉर्जियस स्टाइल एक फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव फ्रेज है. ओके, अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द बिलो सेंटेंसेस. पहला क्वेश्चन है सी, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ ईटिंग, ये ईटिंग यहाँ पे वर्ब है और एन एप्पल ऑब्जेक्ट है. उसी तरह नेहा सब्जेक्ट है, इज़ राइडिंग वर्ब है, ए हॉर्स ऑब्जेक्ट है. फिर राहुल सब्जेक्ट है, इज़ ईटिंग वर्ब है, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है. फिर आई सब्जेक्ट है, सेंट वर्ब है, खुशबू ऑब्जेक्ट है, सम मनी. ओके, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया. अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. डिसाइड विच पार्ट ऑफ द स्पीच आर द अंडरलाइन वर्ड्स. सो पहला क्वेश्चन है द वेदर वाज वेरी कोल्ड. यहाँ पे वेरी पे अंडरलाइन है तो ये वेरी हो गया एडवर्ब. सेकंड है माय फ्रेंड सेड ओ व्हाट ए कोल्ड वेदर. यहाँ पे ओ में अंडरलाइन है तो ओ है इंटरजेक्शन. फिर है वी हैड ए ब्रेकफास्ट एट ए कैफ़े नियर द रेलवे स्टेशन. यहाँ पे ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट नाउन है. फिर है माई फ्रेंड वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट हिज हैवी बैग. यहाँ पे हैवी अंडरलाइन है तो ये एडजेक्टिव है. फिर वी लेफ्ट फॉर द माउंटेन जस्ट बिफोर 6 इन द मॉर्निंग तो ये वर्ब है क्योंकि लेफ्ट एक वर्ब होता है. फिर है यू हैव टू बी लिव इन योर सेल्फ इफ़ यू एवर एक्सपेक्ट टू अचीव ए टफ टारगेट. यहाँ पे योर सेल्फ पे अंडरलाइन है तो यहाँ पे प्रोनाउन होगा. ओके, एंड फाइनली हमारे एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल ए एन और द और लीव द स्पेस ब्लैंक इफ़ नो आर्टिकल इज नीडेड. सो हम पहले ही बोल देते हैं जहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा हम लोग वहाँ पे क्रॉस साइन लगाएंगे. ओके, सो पहला क्वेश्चन है द इंक इन माई पेन इज़ रेड. यहाँ पे द होगा. मिस लीन स्पीक डैश फ्रेंच. यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कोई आर्टिकल यहाँ पे होगा ही नहीं. फिर है आई वांट डैश एप्पल फ्रॉम द बास्केट, एन एप्पल. डैश एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल. आई बॉट डैश अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन, आई बॉट एन अम्ब्रेला. फिर है माई सिस्टर इज़ लर्निंग टू प्ले डैश वायलिन एट हर स्कूल, द वायलिन होगा. क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे द इसलिए होगा क्योंकि वही वायलिन है जो कि स्कूल में है. फिर है आवर नेबर्स हैव डैश ए कैट एंड ए डॉग, ए कैट ए डॉग. और लास्ट है आई बोरोड डैश पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन. यहाँ पे ए होगा. सो हम लोग का कंप्यूटर चैप्टर 1 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पूरा हो गया. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा. बाय.